Hello, friends and students. Myself, Birendra Singh, your English educator. Once again, I welcome you to my YouTube channel, that is BS Learning Forum. Today, I have come with a new topic, and this is the discussion of fifth lesson from West Bengal Board of Secondary Education, Class 10. The name of this chapter is Our Runaway Kite, written by Lucy Maud Montgomery. So first of all, I'll read this chapter in English, and afterwards I'll discuss its Hindi meaning. So let's read this one. In this video, I'm going to deal with Unit 1. Of course, there was nobody for us to play with on the Big Half Moon. We just had to make the most of each other, and we did. We live on the Big Half Moon Island. We are Father and Claude and I, and Aunt Esther and Mimi and Dick. It used to be only Father and Claude and I. It is all on account of the kite that there are more of us. This is what I want to tell you about. Father is the keeper of the Big Half Moon Lighthouse. I am 11 years old. Claude is 12. In winter, when the harbor is frozen over, we all move over to the mainland. As soon as spring comes, back we sail to our own dear island. The funny part used to be that people always pitied us when the time came for us to return. They said, we must be so lonesome over there, with no other children near us. Of course, Claude and I would have liked to have someone to play with us. It is hard to run pirate capes and things like that with only two. But we used to quarrel a good deal with the mainland children in winter. So it was perhaps just as well that there were none of them on the Big Half Moon. Claude and I never quarreled. To be sure, Father didn't seem to have any relations except us. This used to puzzle Claude and me. Everybody on the mainland had relations. Why hadn't we? Was it because we lived on an island? We thought it would be so jolly to have an uncle and aunt and some cousins. Once we asked Father about it, but he looked so sorrowful that we wished we hadn't. He said it was all his fault. Claude and I didn't understand what he meant. अभी तक हमने इस चैप्टर को पढ़ा. अब हम चलते हैं इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन की ओर. यहाँ पर नैरेटर यह कहती है कि हम लोग सभी बिग हाफ मून आइलैंड पर रहते थे. वहाँ पर हमारे साथ खेलने वाला कोई नहीं था, सिर्फ हम दो भाई बहन ही थे. जो भी हो, हम लोग एक दूसरे के साथ खेलते खेलते वहाँ पर बड़े हो रहे थे. ये बोला जा रहा है आगे कि वर्तमान में यहाँ पर बिग हाफ मून आइलैंड पर नैरेटर और नैरेटर का भाई और उनके पिता के साथ आंट ईस्थर और उनके दो बच्चे मिमी और डिक भी रहते थे. लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था. शुरुआत में उस आइलैंड पर सिर्फ राइटर, उनका भाई और उनके पिता ही रहते थे. ये कहा जा रहा है कि एक पतंग का किस्सा हुआ जिसने इन दोनों भाई बहनों को अपने फुफेरे भाई बहनों के साथ जोड़ दिया. इस कहानी में उसी पतंग वाले किस्से के बारे में कहा गया है, लेकिन उसके पहले अपने फैमिली के बारे में, अपने पिता के बारे में राइटर थोड़ा सा और लिखती हैं. यहाँ पर वो कहती हैं कि उनके पिता बिग हाफ मून आइलैंड पर एक लाइट हाउस हुआ करता था, उसकी देख रेख करते थे. उस समय उसकी उम्र 11 वर्ष की थी और उनके भाई की उम्र 12 वर्ष थी. विंटर में यानी शीत ऋतु में जब तट जम जाया करता था, बर्फ़ में परिणत हो जाया करता था, उस समय राइटर कहती है कि उनका पूरा परिवार मेनलैंड में चला जाता था, यानी वे आइलैंड छोड़कर मेनलैंड चले जाते थे. और जैसे ही स्प्रिंग का मौसम आता था,
वैसे ही उन लोग वापस अपने डियर आइलैंड यानी बिग हाफ मून आइलैंड में लौट आते थे। सबसे मज़े की बात यह थी कि लोगों को उन पर काफ़ी करुणा होती थी। वे कहते थे, तुम लोग अकेले वहाँ बिग हाफ मून आइलैंड पर कैसे रहते हो? वहाँ पर तुम लोग अकेला महसूस करते होगे, तो वहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं है तुम्हारे साथ खेलने को। ये राइटर कहती है, हाँ ऐसा तो था कि क्लॉड यानी मेरा भाई और मैं सिर्फ 2 ही लोग वहाँ पर थे जो आपस में खेला कूदा करते थे। थोड़ी बोरियत महसूस होती थी, लेकिन जो भी है हम लोग दोनों ही एक दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े हो रहे थे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेनलैंड पर जब भी वे लोग जाते थे वहाँ दूसरे बच्चों से थोड़ी बहुत नोकझोंक हुआ करती थी, लेकिन राइटर अपने भाई के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करती थी। कारण कि उस बिग हाफ मून आइलैंड पर वे लोग एक दूसरे के साथ ही हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ खेला करते थे। आगे राइटर कहती है कि पिता को देखकर ऐसा महसूस होता था कि शायद इनका कोई भी रिलेटिव नहीं है, इनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। बड़ा अजीब लगता था सोचकर, सभी का रिश्तेदार है तो हमारा क्यों नहीं है? यह कितना मज़ेदार होता कि हमारे भी अंकल आंट होते और हमारे भी कज़न्स होते, हमारे भी चचेरे भाई बहन होते। ऐसा राइटर और उनका भाई सोचा करते थे। यहाँ पर एक बार की बात है कि उन्होंने बस अपने पिता से पूछ डाला कि पिताजी हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? यह सुनकर उनके पिता काफ़ी दुखी हो गए और उनके दुख को देखते हुए राइटर और उनके भाई दोनों को काफ़ी अफसोस हुआ और उन्होंने सोचा कि काश हम ये सवाल अपने पिता से नहीं करते। इस पर उनके पिता ने उत्तर दिया कि सब कुछ मेरी ही गलती थी, सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ। और इस तरह से जो भी उनका जो उत्तर हुआ, इससे हमें कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार कैसी गलती थी पिता की, क्या बात थी। जो भी हो, यूनिट 1 में यहीं तक हम देखते हैं। आगे की कहानी यूनिट 2 में दी गई है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे और आगे हम लोग एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। एक्सरसाइज के लिए मैं ये बता दूं कि जो भी एक्सरसाइज दिया गया है उसे सॉल्व करके मैंने उसका फ़ोटोग्राफ अपलोड कर दिया है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे पॉज कर लें और देखकर अपना एक्सरसाइज सॉल्व कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please do visit my channel for further knowledge and information, and please like, share and subscribe. Thank you.